أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کو بیان کروں گا غسل کے متعلق۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کو نہیں شرماتے، اور دوسری بات، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور جو ہمیں کرنی چاہیے۔ جو کوئی میرا بھائی بہن اگر صحیح طریقے سے غسل نہیں کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ وہ پاک نہ ہوا تو پھر کیسی عبادت، کیسی نماز۔ تو یہ ہر میرا بھائی بہن اس وجہ سے ان باتوں کو سنیں اور دیکھیے کہ ہم پر کہاں غلطی ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں، کیونکہ یہ اسلام کے احکام ہیں جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ صحبت اور غسل جنابت کے مسائل اور فرائض۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ بحث ہو رہا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال اس میں شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج ضروری نہیں، اور دوسرا گروہ یہ بیان کرتا تھا کہ غسل کے لیے دخل کے ساتھ انزال شرط ہے، اور یہ طویل بحث بغیر کسی فیصلے کے وہی رہی۔ تو آخر یہ قرار پایا کہ وہ ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ فرماتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور انزال ہونا شرط نہیں، یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ اور جنابت کے احکام، وجود غسل کی حالت کو حالت جنابت کہا جاتا ہے۔ جنابت مثلاً جم سے، اور جم پہلو کو کہتے ہیں، یعنی بچنا۔ میں آپ کو وہ حالتیں بیان کرتا ہوں جن پر انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں سے نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہو جانے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کسی وجہ سے بھی اگر جوش کے ساتھ منی نکلے تو آپ پر غسل فرض ہو گیا، یعنی اس میں کوئی ایسا خواب بھی ہو سکتا ہے یا ویسے ہو۔ اور نمبر 2، میاں بیوی آپس میں جب ملے صحبت کریں تو اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جب بہنوں اور بیٹیوں کو حیض ہوتا ہے تو اس کے بعد غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، نفاس کے بعد، نفاس یعنی جب بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہے تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ یہ ان کے لیے جو بہنیں اور بیٹیاں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں اپنے چیک اپ کے لیے، تو لیڈی ڈاکٹر ان کا ایکسٹرنل چیک اپ بھی کرتے ہیں اور انٹرنل چیک اپ بھی کیا جاتا ہے، تو ان میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل کی جو حالتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو اسی میں غسل فرض ہوتا ہے اگر ایک بھی شرط ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب تم عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ اپنے اندر بہت تفصیل رکھتے ہیں، ڈیٹیل رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کو سمجھانا اور پڑھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے جس سے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہے، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو اس میں واضح طور پر یہ ہمیں سبق سیکھنے کو ملا
کہ कोई भी ऐसा काम जो दीन से मुतल्लक हो तो हमें उसको सीखना चाहिए, उससे हया नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बात फिर वही आ गई, अगर हम हया करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो फिर हम नापाक रहेंगे और हम किस तरह रब्बे करीम की, रब्बे असीम की इबादत कर सकेंगे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज लोग इसको नापसंदीदा भी करार देते हैं। तो ऐसा करना सरासर नासमझी की इलामत है। और हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो खैर सिर्फ उसकी अपनी जात तक नहीं रहती, बाज़ औक़ात दूसरों की भलाई का जरिया भी बन जाती है। जिस तरह एक बंदा कोई चीज सीखता है तो वो दूसरे को भी बताता है तो उसके लिए भी बेहतरी होती है। और एक बात याद रखिएगा कि औरतों को भी एहतराम होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि हजरत उम्मे सलैम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। तो इसमें यही बात होगी कि हक बात कहने में अल्लाह ताला नहीं शर्माता, तो उसके लिए हमें भी ये चाहिए कि हम भी शर्म ना करें। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर हमें किसी चीज का इल्म नहीं होगा तो खुदा न खास्ता अनजाने में कोई गुनाह का काम या गलत काम ना हो जाए। तो ये कह के उन्होंने मसला पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या औरत पर गुस्ल है जब उसको एहतलाम हो? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन वो जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। तो इस पर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म से मुंह छिपा लिया और अर्ज करती है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरतों को भी एहतलाम होता है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ होता है। और उसके बाद आपने एक प्यार की डांट भी दी कि तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। और इसमें यह भी होता है कि मिजाज का फर्क हो कि बाज खवातीन में ये हो और बाज में ना हो। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि एहतलाम सोने के वक्त होता है, यानी जब कोई सोकर उठे और अपने कपड़ों पर दाग देखे, ज्यादा डिस्चार्ज देखे। और इसमें यह भी है कि ख्वाब कोई फीलिंग यानी ख्वाब की कोई हालत आपको याद ना भी हो तो तब भी आप पर गुस्ल करना जरूरी है। तो मालूम ये होता है कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशाने मनी देखे तो ये एहतलाम की अलामत है, तो लिहाजा उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। और अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाए, यानी ख्वाब याद है लेकिन सामने कोई अलामत नहीं है, तो फिर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। और ऐसी सूरत में शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि मैंने ख्वाब देखा तो मुझे नहाना चाहिए, महज ख्वाब पर नहीं, जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज आप देख नहीं लेते, वाज़ेह तौर पर कोई एविडेंस, कोई प्रूफ। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ, तो क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूं? तो आपने फरमाया, उनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि 3 लब पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तो पाक हो जाएगी। यानी बालों की स्किन भीगना जरूरी है, पूरे बाल खोलना जरूरी नहीं है। जुम्बी के बालों का मसला, हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। तो आप फरमाने लगी, इब्ने अमर पर तअज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? यानी ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डांट थी। वो कहते हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी।
तो इसमें हमें मालूम यह होता है कि गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं है, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ले जनाबत का है। गुस्ले हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि वो महीने में एक बार है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। तो ये देखे कि इसमें दोनों चीजों में फर्क क्यों है। उसकी वजह के दोनों की नौयत में फर्क है। हैज एक निजासत की कैफियत है, तो उसके बाद नहाना और नहाने के बाद खुशबू लगाना उसका हुक्म मिलता है, लेकिन गुस्ले जनाबत में निजासत की वो कैफियत नहीं है। यानी हैज का खून और मनी के कतरों में, इन दोनों में भी फर्क है। और बाज उलमा के ख्याल में जो मनी है ये नापाक चीज नहीं है। अगर कपड़ों को लग गई तो कपड़ा नापाक नहीं, लेकिन उसके लिए अगर वो खुश्क हो जाए तो उसको खुश्क के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हैज के खून पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, चुटकियों से मल मल के उसको धोकर साफ किया जाए। तो देखिए कि इन दोनों हालतों में और दोनों के नहाने में और दोनों की नौयत में बहुत फर्क है। जिस तरह एक में बाल खोले भी जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ले जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। और बहुत सी मेरी बेटियां ऐसी होती हैं जिन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, और या तो वो शर्म के मारे नहाती नहीं शादी के बाद, या अगर नहाती भी है तो फिर वो पूरे बाल धो कर सुखाने में और उन चीजों में इतना वक्त जाया कर देती है कि फिर उन्हें इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अगर हमें दीन के मसाइल का सही पता हो तो फिर हम बहुत सारी मुशक्कतों से भी बच सकते हैं जो ख्वाह की है। तो देखिए कि उसमें क्या कि हालते जनाबत के बाद नहाने के लिए सिर्फ 3 कप पानी, 3 लब पानी, यानी 3 बार क्यों कहा गया कि अगर एक बार सर में डालने से पूरी तरह ना भीगा तो आप 3 बार सर में पानी डालें। और अगर जिस तरह अभी तो ये बहुत सारी सहूलतें हैं कि टूटियां हैं, शावर है, तो आप अपना सर आगे कर लें, पूरे बाल आगे ना करें और पूरे सर की जिल्द को पानी लग जाए और बाकी जिस्म पर पानी बहा लें। और वो भी सुन्नत ये है कि पहले वजू करें जिस तरह हालत जनाबत के बाद करते हैं, और इस गुस्ल में भी 3 बार गरगड़ा करना और 3 बार ही पानी में नाक डालना जरूरी है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वो चंद बातें थी हालत जनाबत की, हैज की और दूसरी गुस्ल की, जो मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सही बयान की है। अगर इनमें से कुछ गलती हो तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ। और मैंने ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप लोगों को इल्म हो कि इस्लाम क्या है और हम गलती में गलतियां ना करते रहे। यानी अगर हमें किसी सही बात का पता ना हो तो हमारी जिंदगी गुनाह में और गलतियों में बसर हो जाए। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, इस्लाम सिर्फ मस्जिदों तक महदूद नहीं है। इस्लाम हमें पूरी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात देता है। अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, अपने कारोबार को चलाएं, अपनी जिंदगी के तमाम मामला तय करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन हमारी दुनिया सबसे बेहतरीन होगी और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत भी सबसे बेहतरीन होगी, क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिससे अल्लाह ताला ने मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको सही मायनों में शरीयत इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।